Okay. So the question is, represent the complex number z is equals to 1 plus iota root 3 in polar form, right? तो x y को हमें कन्वर्ट करके r थीटा की फॉर्म में लिखना है, राइट? तो ये कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आपको सोल्यूशन के साथ साथ चीजें समझ में आएंगी. सो वी विल स्टार्ट विद, so z is equals to, in general we know x plus iota y, so we will be taking x is equals to r cos theta, say this is number 1, and y is equals to r sin theta, say this is number 2, right? So that z will be x की जगह पे r cos theta and iota, y की जगह पे r sin, सॉरी y तो रिमूव हो गया, यहाँ पे आ जाएगा r sin theta, right? Iota as it is. So we can write z is equals to r cos theta plus iota sin theta, right? Then z is also 1 plus iota root 3. So I can put the value of z 1 plus iota root 3 is equals to r in the bracket. Okay, I'll solve r cos theta plus iota r sin theta. Put x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. This x and y will be helpful to us later on, right? So z is equals to r cos theta plus iota as it is r sin theta. So I am putting the value of z as z is equals to 1 plus iota root 3, and it is equals to r cos theta plus iota r sin theta. Now the two terms are equal. The only thing is we have to find the value of r and theta. So equating real and imaginary parts. We will be equating real and imaginary parts. What does it mean? The real term will be equal to the real term and the iota term will be equals to iota term. So we will be having r cos theta is equals to 1 and r sin theta is equals to root 3. R cos theta 1, the real part is compared with the real part, and r sin theta is equals to root 3, imaginary part is compared with the imaginary part. So now we have to find the value of r and theta. R cos theta is 1 and r sin theta is equals to root 3. Say this is number 3, this is number 4. Now squaring and adding 3 and 4. Why we are squaring and adding? We want the value of r. R square cos square theta plus r square sin square theta will be 1 square plus root 3 square will be 1 plus root 3 square means 3 is equals to 4. We can write it as 2 square. And here out of these two terms r square common. Cos square theta plus sin square theta is equals to 2 square. Cos square theta plus sin square theta is very important formula from trigonometry. The value of cos square theta plus sin square theta is 1. So r square will be 2 square, right? Which implies the value of r is 2. But don't use annotations in between, okay? जो भी आप लिख रहे हो that is also visible on my screen. So don't use these annotations. Okay. So
the value of r will be actually plus minus 2, but the radial vector means the distance, and we measure the distance as a magnitude only. If positive, we consider only positive value. So value of r we are getting 2. Now we have to find theta, right? So theta will be, we will divide 4 by 3. So it will be r sine theta upon r cos theta will be equal to, r sine theta is root 3, r cos theta is 1. Why we are doing so? Because we want theta now. R will be cancelled with r. Sine theta upon cos theta is tangent theta, and its value is root 3. So that theta is equals to tangent inverse root 3. Have you done trigonometric table? You know what is the value of sine 0, cos 0, sine pi, cos pi, this way? No, ma'am. Trigonometry. Yes, ma'am. पाई वगैरह की नहीं पता मैम, वो सिंपल पाई वाली वगैरह की नहीं है, हाँ, बस 0, एंगल्स 30, की 60, 45, this 0 you know. मैम। ये वाली पता है, ये डिग्री वाली पता है। हाँ, डिग्री वाली पता है ना, चलो ठीक है। तो हम रूट 3 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। टेंजेंट रूट 3 60। ओके, चलो ठीक है। अगर टेबल, अदरवाइज टेबल कैसे बनाते हैं, वी विल ड्रॉ। ओके, सबसे पहले 0, देन 30, देन 45, देन 60, देन 90, right? And we write 0 by 4, 1 by 4, root 2 by 4, root 3 by 4, root 4 by 4. First we take the value of sine theta, then cos theta, and then tan theta is given by sine theta upon cos theta. So 0 upon 4, 0. So the sine theta, when theta is 0, that means sine 0 is 0. 1 upon 4 square root of that means 1 upon 2. Root 2 upon 4 means root 2 will cancel with 4, 1 upon 2, which means 1 upon root 2. So we write 1 upon 2. It will be root 3 upon 2. It will be 4 by 4, 1, square root of 1 is 1. अब अगर हमें साइन थीटा पता चल गया तो कॉस थीटा को हम रिवर्स करके लिख देते हैं। जो ये 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 यहाँ पे, 1 बाय 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, राइट। ये तो आ गया साइन थीटा। अब ये बेसिक वैल्यूज हैं। अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा पता चल गया तो हम फॉर्मूला लगा के कोई भी और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक tan थीटा वी आर कैलकुलेटिंग साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 0, 1 upon 2 upon root 3 upon 2, 1 upon root 3, 1 upon root 2 upon 1 upon root 2, 1, root 3 upon 2 upon 1 upon 2 is root 3, 1 upon 0 is not defined. So अगर आप भूल भी जाओ कि आपको भूल गए हैं कि ये रूट 3 कब होगा, तो आप टेबल बना के चेक कर सकते हो कि टेंजेंट थीटा रूट 3 होगा जब थीटा की वैल्यू 60 होगी, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि थीटा हमने लिख दिया, ये टेंजेंट इनवर्स रूट 3 है। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 मींस 60 degree, and 60 degree we also write as pi by 3, because पाई आप अपने दिमाग में रख लो कि 180 को पाई बोलते हैं, राइट। द अदर नेम ऑफ 180 डिग्री इज पाई। सो 60 मींस 180 upon 3, right?
60 we can also write it as 180 upon 3 and 180 को आपने पुट कर दिया पाई एंड इट इज पाई बाय 3. सो हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज and we will get z in terms of r and theta. So we मैम know, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 में लिखनी जरूरी है? अगर नहीं भी लिखोगे तो आपके स्टैंडर्ड के लिए चलेगा, 60 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है. बट अगर किसी बुक में पाई बाय 3 लिखा होगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये पाई बाय 3 कहाँ ओके क्यों है, क्योंकि हो सकता है किसी बुक में आंसर पाई बाय 3 हो, तो इसलिए आपको दोनों ओके. वैल्यू. सो जेड हमने क्या लिखा था, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आर की वैल्यू 2 है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3 या फिर आप 60 डिग्री लिख लो, आयोटा साइन 60 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. This is the answer. This is the polar representation of Cartesian form. तो हर क्वेश्चन में आपके स्टेप सेम होंगे. ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, राइट. ये डायग्राम जरूरी नहीं है, ये क्वाड्रेंट समझाने के लिए, ये भी हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. बट आपके लिए स्टेप्स सेम ही रहेंगे, राइट. सबसे पहले z को x प्लस एओटा y, x को r cos थीटा पुट कर देना है, y को r sin थीटा पुट कर देना है, राइट. सो z की वैल्यू आ गई r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा. चाहे ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो, आपको कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है. सो z की वैल्यू आपने ले ली 1 प्लस आयोटा रूट 3 विच इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा. सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सो r cos थीटा की वैल्यू 1, r sin थीटा की वैल्यू रूट 3. ये स्टेप हर एक में सेम होगा. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक ये स्टेप की हर टर्म में स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है, हर क्वेश्चन में स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये राइट हैंड साइड आपकी डिफरेंट होगी. यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3 which becomes 4 can be written as 2 square. So that r square, when we are taking cos common in the bracket, we are getting cos square theta plus sin square theta, it is 2 square. Cos square theta plus sin square theta की वैल्यू 1 है, राइट. दिस इज बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. सो r स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर आ गई, क्योंकि r एक रेडियल डिस्टेंस है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2. ये एक स्टेप हमारा हर क्वेश्चन में रहेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. एक ये स्टेप हमारा हर एक क्वेश्चन में रहेगा कि साइन थीटा वाली टर्म को कॉस थीटा वाली टर्म के साथ डिवाइड करना है, राइट. सो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, आर साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 अपॉन 1. सो विच मीन साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा विच इज इक्वल्स टू रूट 3. सो अब हमें ये पता करना है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए टैन थीटा रूट 3 आ जाए. तो वो हमने टेबल से चेक किया कि जब हमारा थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा, राइट. थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होगी, तो टेंजेंट की वैल्यू हमारी रूट 3 होगी. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि थीटा हमारा 60 डिग्री होगा, और उसको पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं 180 अपॉन 3 विच मीन्स पाई बाय 3. सो अब हमें फाइनल आंसर लिखना है. z हमारा था r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, z की वैल्यू 2, cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, और यू कैन राइट cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3, राइट. अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं. वेरिफिकेशन कैसे होगी, z is equals to 2, put the values. cos 60 की वैल्यू
cos 60 1/2, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी है √3/2, तो हमने वैल्यू पुट कर दी √3/2। ये सिर्फ आपके लिए है, आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना, आपको तो सिर्फ पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2 1/2 प्लस आयोटा √3/2, दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है 1/2। सो अगर 1/2 बाहर चला गया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस आयोटा √3। सो दिस 2 and 2 cancel each other, so this implies z is equals to 1 plus iota √3। क्या हमारा क्वेश्चन यही था, z is equals to 1 plus iota √3? yes, यानी कि चाहे हमने इसको थीटा की फॉर्म में लिख दिया पर एक्चुअली में हमारा z 1 प्लस आयोटा √3 ही है। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया थीटा की वैल्यूज को पुट करके। सो इससे आपको और भी क्लियर हो गया कि ये z इज इक्वल्स टू जो r और थीटा की फॉर्म में लिखा है, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, otherwise answer of both the terms is same। z is equals to 1 plus iota √3 and z is equals to 2 cos pi/3 plus iota sin pi/3 is the same answer। बस ये जो फॉर्म है r और थीटा की, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, and this form is Cartesian form, right? So this type of questions are very important। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे P रिप्रेजेंट किया हुआ है डायग्राम में 1, √3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वैल्यू है ये √3, r cos थीटा 1 है, r sin थीटा √3 है, तो दोनों वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट? तो ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपको प्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारा 1.3 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट? सिमिलरली आपके पास अदर पॉइंट्स भी होंगे जो आपको शो किया होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे जो ये क्वेश्चन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट इसको सॉल्व करेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए सिर्फ ये पोलर फॉर्म। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही टॉपिक करेंगे हम।